Hi, I'm Ansari Nazim Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today, my presentation topic name is Population Distribution of Maharashtra for SYBA. The syllabus name is Geography of Maharashtra. What is population? Population is the number of living things that live together in the same places. Number of humans in a certain area. पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन? आबादी क्या है? एक मखसूस इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस स्टेट इन इंडिया विथ पॉपुलेशन of 11 crore 23 lakhs 74,333 people living in Maharashtra according to 2011 census. In percentage, 9.28% of India's population, of which males and females are 5 crore 82 lakh 43,056 males and 5 crore 41 lakh 31,277 females living in Maharashtra respectively. Population density and its region. The density is the measure of population distribution. डेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इन 1916 द डेंसिटी ऑफ महाराष्ट्र इज ओनली 195 पीपल लिविंग इन 1 square kilometer and in 2011 the 365 people living in 1 square kilometers. It is continuously increasing. Density of population are as follows. जो डेंसिटी हम उसे मुख्तलिफ हिस्से में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन, more than 400 people living in 1 square kilometer is called high population density region. Moderate density region, 250 to 350 people living in 1 square kilometer is called moderate density population region. Low density region, 100 to 200 people living in 1 square kilometer is called low density population region. Least density population region, less than 64 people living in 1 square kilometer is called least density population region. In this map population, the regions show the Maharashtra region show the density of population in Maharashtra. In Maharashtra are 36 districts and 6 administrative divisions. In 36 districts, 8 districts more than 365 density. इसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मोर देन 365 पीपल्स रहते हैं और सबसे ज़्यादा मुंबई सब अर्बन एरियाज में रहते हैं। 1500 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और सबसे कम जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। उनमें है इंक्लूडिंग बीड़, यावला, धुले, शिरपुर। इट कॉल्ड लो पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन एंड लीस्ट डेंसिटी रीजन में है खानदेश एंड हिली रीजन एंड फॉरेस्टेड एरियाज। यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों होगी? फॉरेस्ट कवर एरियाज हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है और ये बैकवर्ड इलाका है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। इसमें जो इंक्लूडिंग जो है सम पार्ट्स ऑफ कोकन रीजन्स एंड खानदेश रीजन्स, इट इज लीस्ट पॉपुलेशन रीजन्स। इट इज 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। Factors affecting population distribution. Many more factors are affecting the distribution of population. First, physical factor and natural factor. Topography. Topography, relief features, undulating land surface on the earth's surface is called relief features. Like plain, plateau, mountains is called relief features and topography. टोपोग्राफी जो है हमारा, अगर हिली रीजन रहेगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि वहाँ पर आमदोरफ्त के जराए, इंडस्ट्रीज, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। और प्लेट्यू रीजन में सतह इलाके में हिली रीजन की कंपेयर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है और थोड़ी प्लेन जो जेंटल स्लोप होती है उसकी वजह से आबादी ज़्यादा होती है। एंड प्लेन रीजन्स
All types of activities are in plain regions. So the plain regions is high populated regions. Rivers, valleys, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी जो दुनिया है जब बनी, जब से हम इंसान दरियाओं के किनारे ऐसे पानी के किनारे रहना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पानी जो है हमारी बेसिक नीड्स में से है और हमें पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और बहुत सारे कामों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब इस्तेमाल होता है। इसलिए हमारी जहाँ दरिया होते हैं, जहाँ वाटर बॉडीज होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्लाइमेट, अगर हमारा मौसम क्लाइमेट अच्छा, आब हवा अच्छी होगी, ना बहुत ज़्यादा सर्द और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, मॉडरेट होगी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और अगर वही क्लाइमेट लेस होगा या पुअर क्लाइमेट होगा, उसकी वजह से पॉपुलेशन कम होगी। जैसे कि फॉरेस्टेड एरियाज, जिसका क्लाइमेट रफ होता है और वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। मिनरल रिसोर्सेस, ऐसी जैसा कि हम सब जानते हैं महाराष्ट्र एक प्लेट्यू रीजन है और यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हमारी पॉपुलेशन जो है वो हाई हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स, मेनी मोर इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट ऑन दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ है, वो अगर ज़्यादा होगी तो हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। जैसे कि मुंबई सब अर्बन एरियाज, थाने, नागपुर, नासिक एंड कोल्हापुर, अहमदनगर इलाके जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स में आते हैं। पुणे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब अच्छे होने की वजह से भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वहाँ रहना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स अगर स्ट्रांग होगा तो वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन हाई होगी। जैसे कि हिली रीजन और फॉरेस्टेड रीजन में कम्युनिकेशन सिस्टम वीक होता है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। और इन अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम हाई होता है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। लोग गाँव को छोड़कर शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जॉब मिलती है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, इसके लिए उनकी इनकम बढ़ती है, उससे वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, उनका लाइफ चेंज हो जाएगी और उनके उनके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। इसलिए लोग गाँव छोड़कर शहरों में रहना पसंद करते हैं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है और डेथ रेट लो है फॉर दी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, इसलिए ऐसे इलाकों में भी जो है हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई होती है। जैसे कि अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ मुंबई, नागपुर, अहमदनगर, पुणे, इन इलाकों में हमारा बर्थ रेट हाई है और जो लोग हैं माइग्रेट होकर भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई होगी। सोशल फैक्टर्स लाइक सेटलमेंट फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इलिटरेसी एंड अर्बनाइजेशन, शहरियाना, जब शहर तेज़ी से बसना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से शहरों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और हमारी जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर शहरों में रहना पसंद करने लगी, क्योंकि वहाँ पर उनसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ आसानी से मिलने लगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से मिलने लगी। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए लोग गाँव छोड़कर शहरों में रहना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी और आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। इलिटरेसी जो है, नाखवानदगी की शरह जो है, वो भी एक सोशल फैक्टर है, ये भी हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर असरअंदाज होता है। जैसे कि पुणे एक जो है एजुकेशनल हब है, इंडिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग तालीम के लिए पूरे मुल्क से आते हैं और वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत हाई है। वहाँ पर रहने वाली जो आबादी है वो लिटरेट है और वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है और लोग वहाँ पर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और पॉपुलेशन भी हाई है। हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अच्छी होंगी, आसानी से दस्तयाब होंगी, तो लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर एंड अहमदनगर, etc।
कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस। एज वी नो दैट महाराष्ट्र फाउंडेड बाय द विद द बेसिक, महाराष्ट्र जो है हमारा इसलिए बना, लैंग्वेज की बुनियाद पर बना है। जो मराठी और गुजराती पीपल है वो अलग अलग जगह, अलग अलग इलाका मांग रहे थे। जो गुजराती बोलने वाले हैं उन लोगों का कहना था कि हमें अलग ही रियासत चाहिए, और मराठी बोलने वालों का ऐसा मानना था कि उन्हें अलग रियासत चाहिए, इसलिए हमारा महाराष्ट्र बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये एक ऐसा, जो मराठी बोलने वाले पीपल हैं वो महाराष्ट्र में रह गए, और जो गुजराती बोलने वाले पीपल हैं वो गुजरात में चले गए। रिलीजन जो है हमारा मजहब, वो भी असरअंदाज होता है आबादी पर। जैसे कि लोग अपने रिलीजन के लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अपने कस्टम के लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और ट्रेडिशंस, रिवायात होती हैं, उनके त्यौहार, रस्म रिवाज जो होते हैं, अगर एक जैसे होते हैं तो ऐसे इलाकों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर कोई हिंदुज़म से है और वो हिंदू इलाकों में रहना पसंद करेगा, ऐसे इलाकों में रहना पसंद करेगा जहाँ पर हिंदुओं की ज़्यादा तादाद हो, ऐसे इलाकों में रहना पसंद करेगा। इसलिए हमारा ट्रेडिशन, रस्म रिवाज भी हमारी पॉपुलेशन पर असरअंदाज होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल टर्माइल्स, ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी पॉपुलेशन में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी दुनिया जो है वो सिपड़ती चली गई। दुनिया एक गांव बन गई है, हम किसी से भी कभी भी मुलाकात, हम किसी से भी कभी भी बातचीत कर सकते हैं। इसके वजह से हम कहीं भी घर बैठे हम अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसकी वजह से हम कहीं भी तालीम हासिल कर सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, लोगों को एक दूसरे का जानने का मौका मिला है। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है, और जो शहर है वो तेजी से, जो मुल्क दुनिया है वो तेजी से सिपड़ती चली गई है। दुनिया एक गाँव की तरह हो गई है, जैसे लाइक अ ग्लोबल विलेज। पॉलिटिकल टर्माइल्स, पॉलिटिकल जो हंगामा है, जो सियासी हंगामा है, ये भी हमारी आबादी पर असरअंदाज होता है। जैसे कि अगर जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा हंगामे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर डोमिनेंट होता है, उन इलाकों में लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग ज़्यादातर आज़ाद रहना चाहते हैं और डोमिनेंट और अपनी आज़ादी से रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसे इलाकों में लोग रहना पसंद नहीं करते। माइग्रेशन, महाराष्ट्र जो है यहाँ पर मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं, इस वजह से भी यहाँ पर पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र में इंक्रीज हुई है, और डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ आते हैं, और इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है। गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ पॉलिसीज तारीफ कराती है आवाम की सहूलत के लिए। इन पॉलिसीज, जहाँ पर पॉलिसीज ज़्यादा होती हैं, जैसे कि पुणे है, यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत इजीली मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है, इसलिए पुणे जो है एक डेवलप्ड सिटी है, और वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत हाईली डेवलप्ड है। इन महाराष्ट्र और पूरे मुल्क से, पूरे इंडिया से लोग आते हैं पुणे में तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू ऑल।